ناظرین السلام علیکم، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر شہر کی مساجد میں کثیر اجتماعات، احکام الہی کی پابندی کرنے اور سنت رسول پر عمل کرنے، ائمہ کی تلقین۔ قرآن اور سنت نجات کا راستہ، عبادتوں کے موقع کو ضائع نہ کرے، مسلمان ظلم سے ڈرنے والے نہیں، ہماری لڑائی حقوق کے لیے ہے، جلسہ یوم القرآن سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ ریاست میں اقلیتوں کی ترقی و بہبود ملک میں مثالی، اجمیر شریف میں تلنگانہ رباط کے لیے جلد سنگ بنیاد رکھا جائے گا، لال بہادر اسٹیڈیم میں دعوت افطار کے موقع پر وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ وزیر ٹرانسپورٹ کی RTC مزدور یونین کے نمائندوں سے ملاقات، دھمکی دینے کی تردید، ملازمین پر سیاست کرنے کے الزامات کو یونین نے کیا مسترد۔ رین بازار قتل واقعے کا معمہ حل، مقتول کے ساتھ کام کرنے والا گرفتار۔ اور پان میں نشیلی دوا ملا کر خاتون کی عصمت رزی، میور پان شاپ کا مالک اپیندر ورما گرفتار، شادی کے نام پر استحصال کرنے کا بھی الزام۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں جمعۃ الوداع کے موقع پر مساجد میں کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ سب سے بڑا اجتماع تاریخی مکہ مسجد میں دیکھا گیا، جہاں ہزاروں مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ شہر کی دوسری مساجد میں بھی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ ائمہ نے اپنے خطبے میں ماہ رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری رکھنے کی تلقین کی۔ نماز کے بعد مسلمانوں کو احکام الہی کی پابندی کی ہدایت کے علاوہ عالم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ واضح ہے کہ شہر کے علاوہ اضلاع سے بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جمعۃ الوداع کو مکہ مسجد میں جمع ہوتی ہے۔ صبح سے ہی پہلی صفوں میں جگہ پانے کے لیے مصلی کوشش کرتے ہیں۔ حسب روایت مکہ مسجد کے باہر مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ مجلس کا والنٹیئر کیمپ فراشہ ہوٹل کے پاس لگایا گیا تھا۔ یہاں پر اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ اور مجلس کے ذمہ دار مصلیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار نے انتظامات کی راست نگرانی کی۔ پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کی جائے اور اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلت کو ضائع نہ کریں۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کو تھام لیں، کیونکہ یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اگر آج ہم پریشان ہیں تو اس کی وجہ قرآن اور سنت سے دوری ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن نے کئی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں۔ اس ماہ شب قدر آئے گی اور اس رات اخلاص سے عبادت کی جائے۔ صدر مجلس نے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی تلقین کی۔ انہوں نے مسلمانوں سے ماہ رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری و ساری رکھنے کی تلقین کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان ماہ مبارک کا آخری دہا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کروائے ہیں تو آج بھی ہم کو اللہ موقع دے رہا ہے۔ پہلا دہا رحمت کا ختم ہو چکا، نہیں معلوم کہ رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مغفرت کا دوسرا دہا ختم ہو گیا، نہیں معلوم کہ مغفرت ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب رمضان کا آخری دہا ہے ماہ مبارک کا، جہنم سے نجات کا۔ اگر ہم اب بھی اللہ کو نہیں منائیں گے تو پھر کب منائیں گے؟ ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں،
ہم سال کے 11 مہینے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا. ہم سال کے 11 مہینے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, رحم کر دے, مغفرت کر دے, جہنم کی آگ سے نجات دے دے, آزاد کر دے, ہمارے گناہ بہت ہیں. آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے. ماہ رمضان میں حدیث شریف میں آیا کہ جب رات ہوتی ہے مغرب کے بعد آسمانوں سے آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کا وہ بندہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے. آسمانوں سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ سے رزق کی زیادتی طلب کر لے, ہے کوئی جو اللہ سے جہنم سے آزادی کی دعا کر لے. اور اللہ ہر رمضان کی ہر رات کو اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرتا ہے, معاف کرتا ہے. اور یہ آخری دہا, یہ رمضان کے آخری 8 دن 7 دن اب جو باقی ہیں, یہ جہنم سے نجات کے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر خدا نہ خواستہ کسی سے غفلت ہوئی ہے, انسان ہے, بشر ہے, تو میرے بھائی پلٹ کر آؤ. اگر خدا نہ خواستہ تم نے روزے نہیں رکھے تمہاری نفس کی شرارت کی وجہ سے, تو پلٹ آؤ, توبہ کرو اور اپنے نفس سے کہو کہ اب میں تیرا شکار نہیں ہوں گا. اب 7-8 دن باقی ہیں, میں اپنے آپ کو روزہ رکھوں گا. اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو اپنے آپ سے کہو کہ نہیں, اب نمازوں کا پابند ہو جاؤں گا. اگر تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکے تو اپنے آپ سے کہو کہ نہیں, اب آخری 7-8 دن باقی ہے, مسجد کو جاؤں گا, دوڑوں گا. اگر زندگی میں کبھی بھی شب بیداری کی نمازیں نہیں پڑھی, تہجد نہیں پڑھا, تو اپنے آپ سے کہو کہ ایک دن تو کم سے کم اٹھوں گا رات میں اور 2 رکعات اللہ کے خوف میں ادا کروں گا. میرے بھائی, یہی چیزوں کی تعلیم رمضان ہم کو دیتا ہے کہ اپنے رب کو منا لو, اپنے رب کو منا لو. پروردگار, یہ ماہ مبارک ہم نے جتنی بھی عادتیں کی, اللہ اس کو قبول فرما لیجئے, اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ نہیں معلوم کہ رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی, اللہ نہیں معلوم کہ مغفرت پوری ہوئی نہیں ہوئی, اللہ نہیں معلوم کہ اب تک جہنم سے نجات ملی یا نہیں ملی. اللہ اتنا تو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں, ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم گناہگار ہیں, اور ہم کو یقین ہے مالک کہ تو معاف فرمانے والا. اللہ معاف کر دے, اللہ ہمارے معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہم کو متحد کر دے پروردگار. اللہ تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت کو ہمارے سینوں میں پیدا کر دے. اللہ ہمارا تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام بنا دے. اللہ قرآن اور سنت کا پابند بنا دے. اللہ آج ہم بڑے بے سر و سامان ہے پروردگار. میرے مولا, یہ آنکھ کے آنسو ان ظالموں کے خوف سے نہیں ہے پروردگار, نہیں ہے اللہ. یہ جان تیری دی ہوئی ہم دینے تیار ہیں, ہم تیار ہیں مالک. کی آنکھ میں آنسو ان ظالموں کے خوف سے نہیں ہے, بس تیرا نام لے رہے تو رقت طاری ہو جا رہی پروردگار. ہم کس سے مانگیں گے اللہ, تو ہمارے لیے کافی ہے رب العالمین. ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے پروردگار. ہم تیرے حبیب کی امت ہے جنہوں نے بدر میں شہادت الجو کہہ کر کنکریاں پھینکی, تو تو نے کہا ہے حبیب آپ نہیں بلکہ ہم پھینک رہے ہیں. اللہ جو آج ہم پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں, اللہ ہم کو بچا لے, ہم کو اخلاص دے, ہماری نیتوں میں اخلاص دے. اللہ ہمارے علماء کی کو صحت دے, ہمارے علماء کی, ہمارے حفاظوں کی ان کو صحت دے پروردگار. پروردگار ان سے دین کی شمع کو اور آباد اور روشن کر دے. اللہ تیرے خوف دے دے, تیرے حبیب کی محبت عطا کر دے. اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما, اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما, اللہ ہماری بچیوں کی پر رحم فرما دے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو
फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, उस्मान ज़ुन्नूरैन, शेर खुदा का सदका अता कर दे। परवरदिगार शहजादे जन्नत का सदका अता कर दे, शहजादी जन्नत का सदका अता कर दे। परवरदिगार सहाबा कराम का सदका अता कर दे। अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन का सदका अता कर दे। परवरदिगार तेरे औलिया अल्लाह का सदका अता कर दे। अल्लाह शेख अबुल हसन शादली का सदका अता कर दे। अल्लाह शेख अबुल हसन शादली का सदका अता कर दे। अल्लाह रहम कर दे, तेरे हबीब का वास्ता। अल्लाह हमारे हिम्मतों को बुलंद कर परवरदिगार, हमारे हौसलों को बुलंद कर, हमारे ईमान को मजबूत कर दे परवरदिगार। हमको इतना मजबूत कर दे या अल्लाह, हमारे दिलों से इन जालिमों का खौफ निकाल दे, वहन को निकाल दे। हम एक पत्थर की दीवार की तरह बनकर तेरे दीन के उस मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम करते रहे। अल्लाह हमको तौफीक याफ्ता बना दे। अल्लाह हमारी नमाजों में खुशू और खुजू फरमा दे। अल्लाह हमारा दिल, जब नमाज हो हमारा दिल उसमें शामिल हो, जब तरावी की नमाज पढ़ी जाए हमारा दिल उसमें शामिल हो। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह हमारे पास सिर्फ ये हाथ हैं, यही हमारा हथियार। अल्लाह हम बेसरो सामानी के आलम में तुझसे भीख मांग रहे हैं, हमारी मदद फरमा दे। अल्लाह वक्त के फिरौनों का खात्मा कर दे। अल्लाह वक्त के नमरूदों का खात्मा कर दे। अल्लाह हमारी अजमत को बहाल कर दे। अल्लाह हमारी अजमत को बहाल कर दे। अल्लाह सरजमीन दखन को एक पुरअमन जगह बना दे। अल्लाह दोबारा इस रियासत में एक सेकुलर हुकूमत को कायम कर दे परवरदिगार। जो लोग मुसलमानों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, अल्लाह उनके लिए दोबारा इख्तिदार से उनको नवाज दे। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती अता फरमा। परवरदिगार मेरे एमएलएस को और हिम्मत दे। अल्लाह मेरे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी को सेहत दे। अल्लाह हमारा इस शहर है, इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह ये साजिशों के सर उसमें अल्लाह बचा ले परवरदिगार। अल्लाह तू बचाने वाला है, तू हमारे अराकीन की हिफाजत फरमा। हमारे नियतों में इखलास दे कि हम कौम और मिल्लत की, गरीबों की खिदमत करें। अल्लाह हमको तूने जो इज्जत बख्शी, हम ये ना देखें कि कौन मुसलमान है या नहीं, हम इंसानियत की खिदमत करें। अल्लाह हमारे को कामयाबी दे दे दीन और दुनिया में। परवरदिगार सरजमीन हैदराबाद को और मजबूत बना दे। अल्लाह औरंगाबाद में अमन को कायम कर दे। अल्लाह जो जालिमों ने मजलूमीन पर जुल्म किया औरंगाबाद में, अल्लाह तू देख ले उन लोगों को। अल्लाह तू देख ले। अल्लाह लाज रख ले परवरदिगार, हमारी लाज रख ले। इस माह मुबारक की चंद दिन बाकी हैं, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम पूरे जोरों से रह सकें, खूब तिलावत कर सकें कुरान की, ज़कात दें। अल्लाह तौफीक दीजिए ज़कात देने की। अल्लाह बेशक आपने 32 मरतबा कुरान करीम में नमाज के साथ ज़कात का जिक्र किया। अल्लाह दौलतमंद मुसलमानों को तौफीक दीजिए कि वो ज़कात निकालें और तो उनके दौलतों में और इजाफा फरमा दे। परवरदिगार हमको कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह ये होंठ जो सूखे हुए हैं परवरदिगार, अल्लाह तू लाज रख ले हमारी, बस हमारी लाज रख ले। अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है। अल्लाह मुझे इल्जामात की फिक्र नहीं है, बस फिक्र है कि तू राजी हो जाए। अल्लाह फिक्र है कि तू राजी हो जाए। अल्लाह तू राजी हो जा, हमारे गलतियों को माफ फरमा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके गुलामों का गुलाम बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबी उम्मिल आले साहबे सल्लम तस्लीमा। सुभान रब्बिका अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर कहा कि जब से बीजेपी की हुकूमत इख्तिदार पर आई है, मुल्क में 8,890 फिसादात हुए, 390 अफराद का कत्ल कर दिया गया, मुल्क में नफरतों का जहर घोल दिया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बुज़दिली छोड़नी चाहिए और हक के लिए लड़ना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अल्लाह से डरने वाली कौम का नाम मुसलमान है और हम जुल्म से डरने वाले नहीं। मुल्क का दस्तूर हमें मसावात का हक देता है। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर फिरका परस्तों की तरफ से चला गई मुहिम पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिन्ना से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान चले गए और ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान में रह गए।
बैरिस्टर ओवैसी ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के RSS हेडक्वार्टर में की गई तकरीर की मजम्मत की। विजय बुक्स में प्रणब मुखर्जी की तरफ से हेडगेवार के बारे में लिखे गए रिमार्क्स पर उन्होंने कहा कि हेडगेवार ने संघ के कारकुनों को अंग्रेजों से ना लड़ने का मशवरा दिया था। इसके बावजूद प्रणब मुखर्जी, जो कि कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, उन्होंने ऐसी बात कही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माह मुबारक की कदर करो आप। हाँ, यकीनन हमारे वतन अजीज में बहुत से वाकयात हो रहे हैं। हमारे वतन अजीज में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर जुल्म गाय के नाम पर किया जा रहा है पिछले 4 साल से, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जब से हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत बनी है, मिस्टर मोदी वजीर आजम बने हैं, बाज़ाब्ता एक मंसूबाबंद तरीके से गाय के नाम पर, जानवरों के नाम पर हमको निशाना बनाया जा रहा है। 4 साल में 28 लोगों को मारा गया गाय के नाम पर। हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है, 24% कम्युनल राइट्स में इजाफा हुआ। ये मेरे आदादो शुमार नहीं है, हुकूमत के हैं, हुकूमत के हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हुकूमत इस मुल्क में एक ऐसे माहौल को पैदा कर दिया जिसमें हमसे नफरतों को भर दिया गया। इस मुल्क में एक ऐसे माहौल को पैदा कर दिया गया कि लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि हम जिम्मेदार हैं हिंदुस्तान के पार्टीशन के। मुल्क में नफरतों में इतना इजाफा कर दिया गया, नफरतों की दीवारों को इतना ऊंचा उठा दिया गया कि हर कदम पर हमसे पूछते हैं कि क्या तुम मुल्क का वफादार है या नहीं है। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो हमको गाय के नाम पर, जानवरों के नाम पर मांग रहे हैं, मार रहे हैं। याद रखो, अगर हमको जानवरों के नाम पर वायलेंस किया जाता रहेगा तो हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ जा रही, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। बुज़दिली छोड़ो, उठो, अपने सियासी हक के लिए लड़ो। ये कांग्रेस, बीजेपी, ये तमाम चीजें कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग आज ये शिकायत कर रहे हैं मुसलमान कि हमको गाय के नाम पर मारा जा रहा है, हमको दाढ़ियां पकड़कर मार कर पूछा जा रहा है, वीडियो डालकर कह रहे हैं कि बताओ तुम्हारा अल्लाह कहां है। वहां पर हमने देखा वो वीडियो कि कैसे हमारे बच्चों की, बुजुर्गों की दाढ़ी पकड़कर मारकर उनसे कह रहे हैं कि बता तेरा अल्लाह कहां है। मैं मारने वालों से कह रहा हूं कि तुम कुछ भी कर लो, हमारा अल्लाह हमारे शहरक के करीब है, हमारा अल्लाह हमारे शहरक के करीब है। और मैं हमारे भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि सूरह आले इमरान में अल्लाह ने हमको कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया कि ना गमगीन हो, ना सुस्त हो, याद रखो तुम ही गालिब हो गए अगर तुम ईमान वाले हो। जिनको दाढ़ी पकड़कर मार कर पूछा जा रहा है अल्लाह कहां है, हमारी 8 साला बच्ची को किडनैप करके, उसको रेप करके जान लेने वालों, राजस्थान में हमारे भाई पर तलवार से मारकर वीडियो निकालने वालों, सुनो, तुम मेरी तारीख को नहीं जानते। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत में अक़लियतों की तरक्की व बहबूद मुल्क में मिसाली है। लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़्क़दा सरकारी दावत इफ्तार में वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट रखा, तो तेलंगाना हुकूमत ने 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा है जो मुकम्मल खर्च किया जाएगा। तेलंगाना में क्या हो रहा है इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। रियासत मुल्क में सर फहरिस्त है। अक़लियतों के लिए जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मुस्तक़बिल में उसके मुस्बित नताइज सामने आएंगे। अजमेर शरीफ में तेलंगाना के रुबात के लिए बहुत जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। इस्लामिक सेंटर और अनीसुल गुरबा का काम भी जारी है और मुसलमानों को SC/ST के तर्ज पर मराद भी दिए जा रहे हैं। दावत इफ्तार में काबिने वज़रा, उलमा मशाइखीन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कलेक्टर हैदराबाद, DGP, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के अलावा दूसरी मौज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की।
इससे पहले वज़ीर आला ने सोमाजीगुड़े में गरीब मुसलमानों में हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। आरटीसी मुलाजमीन अगर हड़ताल करेंगे तो आरटीसी को बंद करने की वज़ीर आला की धमकी के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने जुमे को मजदूर यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि आरटीसी को सालाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। नुकसान में चलने वाले डिपोज के नुकसान को भी कम किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन को धमकी नहीं दी गई, जो भी मसाइल हैं उसकी यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि पड़ोसी रियासत आंध्रा में हुकूमत ने आरटीसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी को 3000 करोड़ रुपए दिए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि मुलाजमीन तंजीमों की हड़ताल पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा, उसका ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। दूसरी तरफ आरटीसी मुलाजमीन ने कहा कि इंतखाबात के सामने हम पर सियासत का इल्ज़ाम मुनासिब नहीं है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए टीएमयू के जनरल सेक्रेटरी अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हड़ताल के फैसले को मनसूख करने की हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त की गई है, लेकिन इसका फैसला रियासती कमेटी के इजलास में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 साल से आरटीसी को मुनाफे में चलाया जा रहा है। नुकसानात की पाबजाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि मुलाजमीन हड़ताल करें या नहीं, इस पर रेफरेंडम कराया जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ मुनक़्क़दा इजलास में मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें मुलाजमतों से बर्खास्त करने की धमकी देना अफसोस की बात है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले मुलाजमीन को इस तरह की धमकियां देना मुनासिब नहीं है। आरटीसी को मुनाफे से खसारे में ढकेलने वाले केसीआर हैं। हुकूमत की तरफ से अदा की जाने वाली सब्सिडी अदा न करते हुए आरटीसी मुलाजमीन को खसारे का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। हुकूमत को फौरी सब्सिडी अदा करनी चाहिए। नुमाइश ग्राउंड में दमे के मरीजों को मछली में प्रसाद खिलाने के प्रोग्राम का आगाज हो गया है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जुम्मे की सुबह खुद मछली में दवा का प्रसाद खाकर इसका आगाज किया। कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ के अलावा दूसरों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम के लिए मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अवाम के लिए नुमाइश ग्राउंड में 40 काउंटर्स कायम किए गए हैं। महकमे संबियात की तरफ से 1,32,000 मछलियाँ भी तैयार रखी गई हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से नुमाइश ग्राउंड के लिए खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। हल्का असम्बली चन्नानगोटे के कंचनबाग डिवीजन के बाबा नगर सी ब्लॉक में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई नतीजा 72.32% रहा। महकमे तालीम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजीव आचार्य ने नताइज जारी किए। लड़कियों ने अपनी सबकत को बरकरार रखा। लड़कियों का मजमूई नतीजा 71% रहा, जबकि लड़कों का 60% रहा। नताइज में आदिलाबाद पहले नंबर पर, निर्मल दूसरे पर, कुमरमहीम आसिफाबाद तीसरे नंबर पर रहा। हैदराबाद को सबसे आखिरी मुकाम मिला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स 16 जून तक डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स में कोई गलती हो तो 8 जुलाई तक प्रिंसिपल से रब्ता किया जा सकता है। साल अव्वल के इम्तहानात में 2,56,186 तलबा ने शिरकत की, जिसमें से 65% तलबा ने कामयाबी हासिल की। साल दुआ में 1,42,144 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 59,030 तलबा ने कामयाबी हासिल की। रिकाउंटिंग के लिए 11 से 18 जून तक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। जाली हनुमान मंगलहाट के पास गुज़िश्ता एक हफ्ते से ड्रेनेज का पानी सड़क पर बहने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे के अलावा मुकामी रुकन बलदियाँ और रुकन असम्बली राजा सिंह से शिकायत की, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं की गई। हालांकि सड़क से रुकन असम्बली का अक्सर गुजर होता है, लेकिन उनकी अवामी खिदमात का यह हाल है कि उन्हें इस मसले से कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। सड़क पर ड्रेनेज का पानी बहने से गाड़ियाँ फिसल कर गिरने के अलावा इसमें मच्छरों की भी अफजाइश हो रही है। दक्कन मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर जूही फातिमा सुल्तान को MBBS टॉप करने पर तहनीत पेश की गई।
प्रिंसिपल दक्कन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हामिद अब्दुल क़य्यूम ने बताया कि तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल की तरफ से डॉक्टर जूही फातिमा सुल्तान को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। उन्होंने बताया कि जूही फातिमा ने इब्तिदा से ही बेहतरीन मुजाहरा किया। डॉक्टर हामिद अब्दुल क़य्यूम ने दूसरे तलबा को डॉक्टर जूही की तरह तालीमी मुजाहरा करने का मशवरा दिया। डॉक्टर जूही ने अपनी इस कामयाबी पर कॉलेज के प्रोफेसर से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर ओवैसी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहर अली खां भी मौजूद थे। ओवैसी हॉस्पिटल में आलमी यौम ट्यूमर के मौके पर वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर रंजीत ने इस मौके पर तलबा को मर्ज के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि ट्यूमर इन्फेक्शन के जरिए भी हो सकता है और MRI के जरिए ट्यूमर का पता चलाया जा सकता। उन्होंने ट्यूमर की अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू होने का भी मशवरा दिया। मलारदेव वली पुलिस स्टेशन हुदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 140 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। तलाशी मुहिम के दौरान 15 टू व्हीलर्स और 2 ऑटोज को दरकार दस्तावेजात न होने पर जब्त किया गया। 15 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया, जिनमें से 3 नाबालिग लड़के शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अवाम की सलामती और उनमें एतमाद बहाल करने के लिए ये मुहिम चलाई गई। चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब याकुतपुरा रशीदा फंक्शन हॉल में हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने मुलजिम सुलेमान को गिरफ्तार किया है। मिरचौक के CP आनंद ने बताया कि असलम बिन रमज़ान में हलीम तैयार करके दूसरी होटल्स को सरबराह किया करते हैं। रशीदा फंक्शन हॉल को पकवान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। महलूक मुनीर और मुलजिम सुलेमान उनके पास ही काम किया करते थे। 6 जून को मुनीर नशे की हालत में आया और अपने दूसरे साथियों से बहस करने लगा। इस पर मालिक असलम ने उसे वहां से गुस्सा करते हुए रवाना कर दिया। जब रात देर गया मुनीर दोबारा वहां आया तो सुलेमान के साथ उसकी बहस और तकरार हुई, जिसके बाद सुलेमान ने कफगीर से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। सुलेमान इससे पहले भी एक भिखारी के कत्ल में मुलव्विस बताया गया है। पान में नशीली दवा खिलाकर सॉफ्टवेयर खातून मुलाजमा के साथ इस्मत रेजी की गई है। हैदराबाद में मशहूर पान की फरोख्त के ग्रुप मयूर पान शॉप के मालिक उपेंद्र वर्मा की तरफ से खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बताया गया कि उपेंद्र वर्मा की मदद करने वाले 2 नौजवानों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। मुतासरा खातून ने बताया कि मोहब्बत के जाल में फंसाकर उपेंद्र वर्मा ने उससे शादी का वादा किया। मालूम हुआ कि फेसबुक पर उपेंद्रा ने मुतासरा खातून से दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार किया था और उसके बाद उससे दोस्ती को बढ़ाया और दोनों की मुलाकातें भी होने लगीं। मालूम हुआ कि उपेंद्र वर्मा ने लड़की की बात तस्वीर और वीडियो भी काबिले एतराज़ हालत में बनाए थे और उससे मुबैना तौर पर वो ब्लैकमेल भी कर रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जमुअतुल विदा के मौके पर शहर की मसाजिद में कसीर इज्तिमात, अहकाम इलाही की पाबंदी करने और सुन्नत रसूल पर अमल करने, आइम्मा की तलकीन। कुरान और सुन्नत निजात का रास्ता, इबादतों के मौके को ज़ाय न करे। मुसलमान जुल्म से डरने वाले नहीं, हमारी लड़ाई हुकूक के लिए है। जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। रियासत में अक़लियतों की तरक्की व बहबूद मुल्क में मिसाली। अजमेर शरीफ में तेलंगाना रुबात के लिए जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार के मौके पर वज़ीर आला का खिताब। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की RTC मजदूर यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात, धमकी देने की तरदीद। मुलाजमीन पर सियासत करने के इल्जामात को यूनियन ने किया मुस्तरद। रिंड बाजार कत्ल वाक़े का मौमा हल, मकतूल के साथ काम करने वाला गिरफ्तार। और पान में नशीली दवा मिलाकर खातून की इस्मत रजी, मयूर पान शॉप का मालिक उपेंद्र वर्मा गिरफ्तार। शादी के नाम पर इस्तेहसाल करने का भी इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।